تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ ہندوستان میں کووڈ-19 وبائی بیماری کی چوتھی لہر 22 جون کے آس پاس شروع ہو سکتی ہے اور اگست کے آخر تک عروج پر ہو سکتی ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور کے محققین کے ماڈلنگ اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے۔ حال ہی میں پری پرنٹ ریپوزیٹری میٹرکس پر شائع ہونے والا ہم مرتبہ جائزہ لینے والا مطالعہ پیشن گوئی کرنے کے لیے شماریاتی ماڈل کا استعمال کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ممکنہ نئی لہر 4 ماہ تک جاری رہے گی۔ کانپور کا شعبہ ریاضی اور شماریاتی IIT کے سبارا پرساد اور راجیش بھائی سبھرا سنکردھر اور شلبھ کی سربراہی میں کی گئی اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھی لہر کی شدت کا انحصار پورے ملک میں کورونا وائرس کے ممکنہ نئے قسم کے ابھرنے اور ویکسینیشن کی حیثیت پر ہوگا۔ مطالعے کے مصنفین نے کہا کہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں کووڈ-19 کی چوتھی لہر ڈیٹا کی دستیابی کی ابتدائی تاریخ سے 936 دن بعد آئے گی، جو کہ 30 جنوری 2020 ہے۔ مطالعہ کے مصنفین نے کہا، لہٰذا چوتھی لہر 22 جون 2022 سے شروع ہوتی ہے، جو 23 اگست 2022 کو اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور 24 اکتوبر 2022 کو ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے تحقیقی مقالے میں لکھا۔ ایویشن ریگولیٹر DGCA نے پیر کو کہا کہ ملک میں طے شدہ بین الاقوامی مسافر پروازوں کی معطلی کو اگلے احکامات تک بڑھا دیا گیا ہے۔ 19 جنوری کو معطلی میں 28 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد 23 مارچ 2022 سے طے شدہ بین الاقوامی مسافر پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تاہم ہندوستان اور تقریباً 45 ممالک کے درمیان جولائی 2020 سے خصوصی مسافر پروازیں ان کے ساتھ بنائے گئے فضائی ببل انتظامات کے تحت چل رہی ہیں۔ مانسون کی آمد میں صرف چند ماہ باقی رہ جانے کے ساتھ ریاستی حکومت نے اسٹریٹجک نالا ڈیولپمنٹ پروگرام SNDP کے زیادہ تر کاموں کو بارش سے قبل جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کا پختہ فیصلہ کیا ہے۔ 2020 اور 2021 میں شہر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے پانی بھر جانے کی وجہ سے شہر کے متعدد رہائشیوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے نمٹنے کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن JHMC نے SNDP کے کاموں کو تقسیم کیا ہے اور کاموں کو 3 چیف انجینئرز کے حوالے کیا ہے۔ پہلے تمام کام SNDP آفیسران اسپیشل ڈیوٹی OSD وسنتھا کے پاس تھے، جس کے نتیجے میں کاموں کو انجام دینے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ JHMC کے تمام 6 زونز میں کاموں کی نگرانی وزیر موڈ کے D راما راؤ باقاعدگی سے کر رہے ہیں۔ SNDP کے تحت موجودہ کل 60 کاموں میں سے تقریباً 24 کام جاری ہیں۔ 8 کے لیے ٹینڈرز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور کام جلد ہی شروع ہونے والے ہیں اور باقی 28 کام ٹینڈر کے مرحلے میں ہیں۔ فیز 1 کے تحت منظور شدہ تمام SNDP کام چیف انجینئرز میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ C وسنتھا کو حیدرآباد میں کوکٹ پلی اور سریلنکم پلی زون اور نظام پیٹ کومپلی بوڈوپل اربن لوکل باڈیز ULP الاٹ کیے گئے ہیں۔ حسین ساگر سرپلس نالا اور نکنام پور جھیل پر جاری کام چیف انجینئر SNDP کے کشن کو سونپ دیا گیا ہے، جنہیں LB نگر، خیرتآباد اور سکندرآباد JHMC زون اور پیڈا امبر پیٹ، بدنگ پیٹ، جلپلی اور میر پیٹ ULBs بھی الاٹ کیے گئے ہیں۔ JHMC کے چیف انجینئر پروجیکٹس M دیوانند کو JHMC حدود کے تحت چار مینار زون اور باقی تمام کاموں کو مختص کیا گیا تھا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کام کی جگہوں کا دورہ کریں اور جہاں SNDP کے کام جاری ہیں اور دیکھیں کہ ٹائم لائن کے مطابق کاموں میں تیزی آتی ہے۔ ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ سائٹس پر پیدا ہونے والے کسی بھی مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے، ورنہ اعلیٰ افسران کے نوٹس میں لایا جائے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے اتوار کو نیول ڈاک یارڈ میں منعقدہ ایک رسمی تقریب میں ملک کے نام سے تیار کردہ اور گائیڈڈ میزائل اسٹیلتھ ڈسٹرائر INS وشاکھاپٹنم کو شہر تقدیر وشاکھاپٹنم کے نام سے منسوب کیا ہے۔ INS وشاکھاپٹنم گائیڈڈ میزائل اسٹیلتھ ڈسٹرائرز کی P-15B کلاس کا لیڈ جہاز ہے اور اسے پچھلے سال 21 نومبر کو کمیشن کیا گیا تھا۔ یہ ہندوستان کی جہاز سازی کی پختہ صلاحیت اور آتم نربھر بھارت کو حاصل کرنے کے لیے میک ان انڈیا
पहल की जस्तजू की अलामत है। जहाज का अमला इसके नारे यशुला भासवा की पासदारी करता है। संस्कृत का एक जुमला जिसका तर्जुमा जलाल हासिल करना है। ये जुमला हर कोशिश में कामयाबी और शान हासिल करने के लिए ताकतवर जहाज की नाकाबिल तस्कीर रूह और सलाहियत को मुजस्सिम करता है। ये नारा इसके अमले को तमाम मुश्किलात पर काबू पाने और जहाज खिदमत और कौम की शान को हमेशा बरकरार रखने की तरगीब देता है। वज़ीर आला ने जो एहलिया YS भारती के साथ थे जहाज़ का एक मुख्तसर दौरा किया और वक्फ की तकरीब के बाद अमले के साथ बातचीत की। जगन ने डॉकयार्ड में देसी साख्ता आबदोज INS वीरा का भी दौरा किया। बहुत से मुंतज़िर नुमाइश एक मुस्बित नोट पर शुरू हुआ। जब से ये दोबारा शुरू हुआ है तकरीबन 40,000 लोगों ने इस जगह का दौरा किया। आमतौर पर जनवरी में मुनक्किद होने वाले इवेंट को ओमिक्रॉन से चलने वाले कोविड केसेस में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र गुज़िस्ता माह मुअत्तल कर दिया गया था। पिछले साल शहर ने नुमाइश को मिस कर दिया क्योंकि सोसाइटी ने कोविड की दूसरी लहर की पाबंदियों के पेश नज़र इसका इनेकाद नहीं किया। जुमे को दोबारा शुरू होने के बाद से नुमाइश का मैदान इन ख़ानदानों के साथ एक जानदार माहौल पेश कर रहा है जो बड़ी तादाद में जमा होने वाले बड़े सालाना मेले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पुराने शहर के एक ताजिर अजीम मुहिउद्दीन ने कहा कि शहर भर से हमारे तमाम रिश्तेदार इस जगह पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ मेयारी वक्त गुजारते हैं। ये हमारे लिए एक रिवायत की तरह है। पुराने शहर के एक ताजिर अजीम मुहिउद्दीन ने कहा, अपने ख़ानदान के साथ आया। नुमाइश बहुत से लोगों के लिए ज़िंदा यादें रखती है। नुमाइश से मेरा तारुफ मेरे वालिदैन ने कराया था। हर साल हम कम अज़ कम एक बार आते हैं और लाउड स्पीकर्स पर चलाए जाने वाले मशहूर बॉलीवुड नंबरों के पस मंज़र में माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हसीन नीलाम के रिहायशी संजय चारी ने याद किया, ताजरों को कारोबार के क़याम के लिए 1400 के करीब स्टॉल्स अलॉट किए गए। रेडीमेड मलबूसात, घर की सजावट का सामान, खिलौने, प्लास्टिक के सामान, दस्तकारी, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुल गई हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लगाए गए थे। तेलुगु देशम के तजुर्बेकार लीडर यादलपति वेंकटराव का पीर की सुबह हैदराबाद में बुढ़ापे की वजह से इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 102 साल थी। उन्होंने आखिरी सांस हैदराबाद में अपनी बेटी की रिहाइशगाह में ली जहां वो गुज़िस्ता कुछ अरसे से मुक़ीम थे। वेंकटराव ने 1967 से साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के कांग्रेस मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे और 1978 और 1980 के दरमियान अंजहानी चीफ मिनिस्टर मारी चन्ना रेड्डी की काबीना में वज़ीर भी रहे। उन्होंने 1983 में तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और कई सालों तक इसके किसान यूनिट के सरबराह के तौर पर काम किया। 1995 में वो गुंटूर ज़िला परिषद के चेयरमैन बने और 1958 में राज्यसभा के रुकन बने। उन्होंने TDP के पोलिट ब्यूरो मेंबर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। 1919 में गुंटूर ज़िले में पैदा हुए वेंकटराव ने आचार्य NG रंगा जैसे खद और सियासी रहनुमाओं के साथ काम किया और बाद में अलापति राजेंद्र प्रसाद, धोलीपाला नरेंद्र और कामिनी श्रीनिवास जैसे आने वाले कई रहनुमाओं के लिए सियासी ग्रुप बन गए। प्रतापगढ़ आज़ाद कानून साज रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ इतवार को कंडा में पोलिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव पर मुबैना हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। राजा भैया और 17 दिगर के खिलाफ कंडा पुलिस स्टेशन में IPC और SC/ST एक्ट की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ख्याल रहे कि गुलशन यादव ने इल्ज़ाम लगाया था कि राजा भैया और इनके साथियों ने पोलिंग स्टेशन के करीब इन पर हमला किया था। अगरचे वो बाल बाल बच गए लेकिन इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। समाजवादी पार्टी के एक वफ्द ने बाद में लखनऊ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात की और राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कनाडा के एक बाअसर आज़ाद MLA राजा भैया ने अपने हरीफ पर मुबैना हमले में अपने मुलविस होने से इनकार किया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्की के एजेंडे की तारीफ़ की और कहा कि लोग इन लोगों को मौका देते हैं जो तरक्की की बात करते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा PM मोदी के रियासत के तयशुदा दौरे से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, PM मोदी ने इक़्तिदार में आते ही अपने तरक्याती एजेंडे से लोगों के दिल जीत लिए। तरक्की की बात करने वालों को लोग मौका देते हैं। ऐसे कम लोग हैं जो तनाज़ात में दिलचस्पी रखते हैं। NCP के नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के दरमियान BJP लीडर
क्रेट सोमिया की जानिब से महाराष्ट्र के दागदार वुज़रा की फहरिस्त शाये करने के सवाल का जवाब देते हुए पवार ने कहा, मैं क्या करूं? क्या मुझे भी जेल जाना चाहिए? मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा, ये मैं सिर्फ तरक्की के लिए काम करता हूं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पीर के रोज़ हुकूमत से कहा कि वो यूक्रेन में फंसे हुए लोगों और इनके अहल खाना के साथ इनकला के मंसूबे को फौरी तौर पर शेयर करे, क्योंकि उसने वहां फ़ौज के ज़रिए कुछ तलबा को हिरासा किए जाने की वीडियो शेयर की। मेरा दिल इस तरह के तशद्दुद का शिकार हिंदुस्तानी तलबा और इनके अहल खाना के साथ ये वीडियोस देख रहा है। किसी भी वालिदैन को इससे नहीं गुजरना चाहिए। उन्होंने कुछ तलबा की वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर कहा, इनके अहले खाना के साथ भी शेयर करना चाहिए, हम अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते। गांधी ने यह भी कहा। गांधी और कांग्रेस पार्टी यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा को बर वक्त ना निकालने पर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इन्हें निकालने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के मुतादिद रहनुमाओं ने यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा की वीडियो शेयर की है, जिसमें इनकी हालत जार को उजागर किया गया है और हिंदुस्तानी हुकूमत से इन्हें जल्द निकालने की अपील की गई है। पीर के अवलीन में एक बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग ने ज़िला उधमपुर में 270 किलोमीटर तवील जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को बंद कर दिया। हाईवे कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली वाहिद हम मौसमी सड़क है। हुक्काम ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI को बताया कि तकरीबन 2:45 बजे समरवली के करीब देवल में हाईवे पर मट्टी का तोदा गिरा। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे शब्बीर अहमद मलिक ने कहा कि रोड क्लीनर्स एजेंसियों ने आदमियों और मशीनरी पर दबाव डाला है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईवे को ट्रैफिक के काबिल बनाने की कोशिश जारी है। मलिक के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हाईवे की बंदिश के पेश नज़र आज सुबह जम्मू या श्रीनगर से किसी नई ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाईवे बंद होने की वजह से जम्मू जाने वाले 300 से ज़्यादा ट्रक और कुछ मुसाफिर गाड़ियाँ फंसे हुए हैं। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ने कहा कि हाईवे को ब्लॉक करने से जम्मू कश्तवाड़ डोडा कौमी शहरा पर भी ट्रैफिक मुअत्तिल हो गई, जो समरवली से भी गुजरती है। आज सुबह सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां श्रीनगर और चनाबवादी बशमुल डोडा और कश्तवाड़ के लिए रवाना हुई। ताहम इन्हें जम्मू में नगरोटा हाई पास और नारवाल समेत कई मुकामात पर रोका गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि काजी गंड बानहाल सेक्टर में ताज़ा बर्फबारी और रामबन में शदीद बारिश की वजह से मुतादिद मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से एक दिन की बंदिश के बाद इतवार को हाईवे को ट्रैफिक के लिए साफ कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक SSP ने कहा कि जम्मू जाने वाले 300 ट्रकों को छोड़कर इतवार को हज़ारों गाड़ियां अपनी मंजिलों पर पहुंच गई। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक मिले।